We have a domestically produced alkaline electrolyzer, plus all the other collaborations which are taking place. You are spending today $180 billion on fossil fuel energy imports. Just imagine if the cost comes down and you divert that to green energy use. It's a revolutionary change. So I see in the years to come, India has positioned itself in the center of the global energy story. Why? Number one, India is where the demand increase takes place. In the next 2 decades, 25% of the increased demand will come from India. Number two, India is transitioning to green energy in biofuels, compressed biogas, in green hydrogen. And most important, I think India is demonstrating technical, innovative solutions which have a very high replicability in the countries of the global south. So, alternate fuel sources, various alternate fuel sources and use of AI in the energy sector have been major discussion points. Any final outcome? Alternate sources to ho gaya, green hydrogen, which is the fuel of the future. But uske beech mein biofuels, that's an alternate source. Then you have compressed biogas. So, major collaboration on this. नहीं कोलैब हम तो इंडियन कंपनीज बना रही हैं इसको तो ये तो हमारी एक कंपनी है जिसने 1000 प्लांट 100 कंट्रीज में किया है पराज इंडस्ट्रीज इन पुणे सो दैट इज द बायोफ्यूल दैट इज इंडिजिनसली प्रोड्यूस ये जो आईओसीएल वाले इन्होंने सेकंड जनरेशन प्लांट पानीपत पे लगाया वो इंडिजिनस प्लांट है वो पराली से बना था उनका जो थर्ड जनरेशन प्लांट है जिसमें वो रिफाइनरी में जो वेस्ट गैसेज होती है उनसे बना उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन सो इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज अ डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी in order to meet the growing demand, Indian companies are expanding their refining base. You have also mentioned about the 25% demand will come from India. So any specific collaboration that has taken place? Collaborations are taking place all the time. There are outside elements who want to, outside entities who want to invest here. A little while ago, when I became minister, there was talk about BPCL, this investment. Once I looked at it and I saw the strength there, I said it would be crazy for us to disinvest BPCL. Today is one of the most successful companies. That alkaline electrolyzer that I mentioned is been produced between BPCL and BARC. So this summit is also taking place at a time where there is some disruption in Red Sea. Has this also come into discussion? You see, whenever there is a disruption anywhere due to non-state actors in particular, there is a little bit of anxiety. But you've been here since the first day. I've been here. I have not seen any. How do I put it? The events in one part of the world or the other part casting any shadow on us. Not at all. Sir, आपके पास आपने कई सेवरल मीटिंग्स भी किए अभी हम बाहर गुयाना के मिनिस्टर से भी बात कर रहे थे कुछ इस तरह के हिंट्स दे रहे थे कि वहाँ पे इंडिया के जो एनर्जी नीड्स हैं जो सिक्योरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगी उसमें कुछ स्पेसिफिक देखिए मैं ऐसा हमेशा ऐसी मीटिंग होती है जो बाकी दुनिया से सीईओज आते हैं सब बायलैटरल मीटिंग्स चाहते हैं और हम कर देते हैं तो हमने बड़ी चीज़ें डिस्कस की गायना के साथ तो हमारी पुरानी लंबी चर्चा उनके राष्ट्रपति भी आए थे भारत उनके उपराष्ट्रपति भी आए थे उनसे बात हो रही है सो कोलैबोरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स उनको फर्टिलाइजर प्लांट में मदद करने के लिए उनके यहाँ रिफाइनरी की कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑयल के लिए सब दीज आर ऑनगोइंग डिस्कशंस एक पॉइंट ये दिख रहा है इस पूरे समिट के दौरान मैं आखिरी क्वेश्चन से पहले पूछना चाहूँगा सर पेट्रोनेट एलएनजी का जो एक्सटेंशन हुआ कतार एनर्जी जी उसके अलावा कोई बड़े डील्स इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए तो देखिए बड़े डील्स की भी तो बात होती है ये नहीं कि यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया ये पेट्रोनेट के साथ जो कतार की डील है ये बहुत महीनों से चली है यहाँ पे कई ऐसी डिस्कशंस हुई हैं कुछ अनाउंस होंगी यहाँ पे कुछ आप 2 महीने बाद देखेंगे 3 महीने बाद क्योंकि 4 दिन की मीटिंग में आप अपने जो डायलॉग है उसको यू कैन टेक इट फॉरवर्ड देयर इज नो प्रेशर टू कल्मिनेट इट देयर आर मेनी एमओयूज वी साइन ग्लोबल बायोगैस अलायंस के साथ बहुत चीज़ें बहुत काम हो रहा है पर अगर आप टेक अवे देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड electrolyzer, domestically produced rig, okay, and that company is
is providing 20 such rigs or has provided 20 such rigs. But more than that, you see the entire ecosystem. क्या-क्या काम हुआ है. अलग कंपनीज ने अलग जगह में काम किया है, and they showcase it here, and that is what is work in progress. So there are some reports that the OMCs have again started making losses on sale of diesel. Their profit. ये आप OMCs को इतना ज्यादा भी मत करिए. इनका वो कहीं मैंने पढ़ा कि डीजल पे 3 रुपए लॉस. देखिए ये प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत चलता रहता है. आप उनसे पूछिए आपकी 3 पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स क्या थी, फिर वो जवाब देंगे तो फिर हम आपसे बैठेंगे. अगर चौथा टोटल अच्छा हो तो आई डोंट थिंक दैट टू वरीड. पर आप में से कोई उनको ओब्लाइज कर देता है कोई एक ऐसी स्टोरी लिख के कि डीजल पे 3 रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है, वो कैलकुलेशन भी देख लेना एक बार अच्छी तरह. So क्या उम्मीद है आने वाले टाइम? मैं स्पेकुलेट नहीं करता हूँ. मैं यही कहता हूँ अगर इन भारत की इकोनॉमी की पहले 3 क्वार्टर में 7.6% ग्रोथ हुई है, चौथा क्वार्टर भी अच्छा चलेगा, कंपनीज भी अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बहुत खुद ही करना चाहेंगे. पर देखेंगे, अभी कोई मैं स्पेकुलेट नहीं करता. अभी थोड़ा टेंशन एरियाज है वहाँ पे, रेड सी में बाकी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ द बॉटम लाइन. थैंक यू सो मच.